اگر وہ چلتی تھی تو چلنے کی ادا فاطمہ کی ہوتی تھی، اگر وہ کھاتی تھی تو کھانے کی ادا فاطمہ کی ہوتی تھی۔ اللہ اللہ وہ ڈھونڈنے لگا، تلاشنے لگا، کوئی لڑکا ایسا مل جائے جو میری لڑکی کے ساتھ نکاح ہو جائے، نمازی اور پرہیزگار اور حلال کماتا اور حلال کھاتا ہو۔ پہلے لوگ رشتہ ڈھونڈنے جاتے تھے نا تو مسجدوں میں ڈھونڈتے تھے، مسجد ڈھونڈ رہا، مسجد جو اچھا ہوگا وہی تو نماز پڑھنے آئے گا، جو اچھا ہوگا وہی نماز۔ مل گیا، بیچارہ یتیم تھا، نہ ماں ہے نہ باپ، اکیلا تھا۔ کیا کرتے ہو؟ یہ کرتا ہوں، کام کرتا تھا، حلال کماتا ہوں، حلال کھا لیتا ہوں۔ اس کی بیٹی سے اس کا رشتہ ہو گیا۔ اب تو لڑکے والے بھی لالچی ہو گئے، لڑکی والے بھی لالچی ہو گئے۔ لڑکی والے پہلے ہی نکال دیتے کہ 4 پہیوں کی ملے ہی نہیں، پہلے ہی نکال دیتے بچولیا کے ذریعے، اور لڑکے والا بھی وہیں منہ ڈالتا ہے جہاں پہ اسے معلوم پکا پتا چل جائے کہ 4 پہیوں کی، چوراہوں پہ کہتا پھر میں نے کوئی مانگی تھوڑی ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے تو کسی بیوہ کی لڑکی کیوں نہیں کر لی؟ اور اب تو مانگنے کا یہ عالم ہے، میری تقریروں میں بات نکل گئی، چینل والے ڈال دیتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ جس کی 3 4 5 7 بیگھے زمین ہے نا تو وہ تو چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا پھر رہا اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگنا، کبڑے حد ہو گئی ہے، حد کبڑے بلٹ مانگنا، کبڑے۔ اس کبڑے سے یہ پوچھو بلٹ کی گدی ہے یہاں اور تیرا کب ہے وہاں، کائے پہ رکھے گا تو؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، تجھ سے سینہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، شیشے میں ایسا لگ رہا 2 3 کھڑے اور بلٹ مانگ رہا، بلٹ۔ اللہ اللہ اس لڑکی کی جب شادی ہو گئی، باپ نے بڑے پیار سے کہا بیٹی میں نے تمہیں پالا تھا، یہ امانت تھی تم جس کی اسے سونپ رہا ہو، میرے لال سنو، بیویوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، میرا کلیجہ جا رہا، میرے دل کا ٹکڑا جا رہا، میرا چاند جا رہا، میرے گھر کا نور جا رہا ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر باپ نے ہاتھ پکڑ کے اس کے شوہر کے ہاتھ میں دے دیا نکاح کے بعد رخصتی کے وقت، اور جاتے جاتے شوہر کی طرف کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے اور کہنے لگا بیٹا میں نے اسے اپنی جان سے زیادہ پالا ہے، میرے لال اگر اس کو تکلیف ہوئی تو مجھے تکلیف ہوگی، ہو سکتا کہیں نہ کہیں نادانی کر دے۔ میرے لال درگزر کرتے ہوئے چلا اور بیٹی سے کہا لو میرے لال جاؤ جاؤ جاؤ، اگر تمہارا باپ مرتا بھی ہو اور شوہر کی اجازت نہ ہو تو گھر سے قدم مت نکالنا، گھر سے قدم مت نکالنا۔ بیٹی پیچھے کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہے، ابا جان 20 سال گھر میں رہی، 21 سال گھر میں رہی، 22 سال گھر میں رہی، 1 منٹ میں جدا۔ لڑکیوں کا کلیجہ ہوتا کلیجہ، بعض شوہر اتنا ظالم ہے، اتنا ظالم ہے، اللہ معاف فرمائے چھوٹتے ہی اس کی ماں بہن کی گالیاں بکا کرتا، آنگن میں کھڑے ہو کے گالی بکتا تاکہ محلے والے سنیں، شراب پی کر کے جوتے چپل سے مارا کرتا، جوتے چپل سے مارا کرتا، جوتے چپل سے۔ تمہاری 2 سال کی 5 سال کی بچی کو کوئی تھپڑ مار دے تو تم کھیل کے رہ جاؤ، اس کی تو 20 سال کی بچی ہے، تم شراب پی کے آگے اسے مار رہے۔ گالیاں بک رہا ایسی گالیاں بک رہا ایسی گالیاں، محلے والے کانوں پہ ہاتھ رکھ رہے، وہ ظالم ہے۔ لیکن سنو اس پہلو کو بھی اٹھاؤں گا، ذرا یہ بات پوری کر دوں۔ وہ لڑکی بار بار پلٹ کے دیکھ رہی ہے، ابا جان چھوڑ کے جا رہی ہوں، امی جان چھوڑ کے جا رہی ہوں، سارے لوگ خوش ہیں مگر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو،
गुजर बसर हो रही है, मगर लड़की इतनी प्यारी थी। रोजाना रात को सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़ पढ़ के अपने शौहर की उम्र और इज्जत के लिए, बरकत के लिए दुआएं करती थी। अपने शौहर की उम्र और इज्जत में ताकि बरकत हो जाए दुआएं करती थी। आज कहां है ऐसी बीबियां, कहां है ऐसी बीबियां? बल्कि इतना टेंशन में डाल देती हैं बात नौजवान को, उसे घर से निकलने ही नहीं देती। अगर वो आगे बढ़ना भी चाह रहा तब भी बढ़ने नहीं देती। कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन, कभी ये अरे जब तुम उसे घर में फांस के रखोगी, कभी अम्मा से लड़ाई, कभी देवर से लड़ाई, कभी बहन भाई, वो बेचारा फैसला करते करते मर गया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की और दोनों मियां बीबी बड़े शान से रह रहे। बाप रोजाना करके देखा करता, मेरी लड़की मुस्कुरा के चला जाता है। कुछ दिन हो गए, एक दिन शौहर का चेहरा मायूस, शौहर का चेहरा मायूस। बीबी ने देख लिया मेरा शौहर आज उदास क्यों है, मेरा शौहर क्यों उदास है। दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन हाथ पकड़ के बोली, एक बात बताओ, मैं तुम्हारी शरीके हयात नहीं हूं क्या मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बीबी नहीं हूं क्या? कहा बात बताओ। कहा मैं 3 दिन से देख रही हूं, संभल के खाना तक नहीं खा रहे हो। उदास क्यों, परेशान क्यों, खुशी और गम में शरीक रहूंगी, बोलो। वो शौहर कहने लगा, बीबी परेशानी है, कई दिन हो गए मगर कारोबार ठप हो गया, अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा, जो मैं काम करता था वो बंद हो गया। तवज्जो रखे, कहा वो काम बंद हो गए। बीबी ने कहा फिर तुमने क्या सोचा? तो शौहर बोला मैं चाहता हूं कि बाहर चला जाऊं, दूसरी जगह चला जाऊं, वहां जाकर के काम कर लूं, तुम्हारी क्या मर्जी है। तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज, दिल तो नहीं चाहता कि तुमसे जुदा कर दूं, मगर आपकी अगर मर्जी है, सही नहीं, काम नहीं चलता, तो आप जा सकते हो वहां पर काम करने के लिए। मगर शौहर ने फिर गर्दन नीचे को कर ली। कब क्या हुआ? कहा सुनो, मामला ये मेरे सरताज, तुम्हारा सर नीचे को क्यों है? वो बीबी कहने लगी, सर नीचे को क्यों है? तो शौहर बोला, तुम्हारा मैका गांव का है, तुम अपने मैके चली जाओगी, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा? घर में चिराग कौन जलाएगा? वो कहने लगी सरताज, बीबी ये सुने, कहने लगी सरताज, आज के बाद ऐसी बात मत कहना, मेरा घर नहीं हमारा घर है। शादी से पहले मैं बाप के घर में था, अब शादी के बाद मेरा तेरा नहीं हमारा घर है। मैं इंशाअल्लाह नहीं जाऊंगी, मैं घर में चिराग जलाऊंगी। लाइट का जमाना नहीं था, लाइट का जमाना नहीं था, अल्लाह, बिजली का जमाना नहीं, घर में डब्बी चिराग जला करते थे। वो लड़की बोली मैं रहूंगी। आज जो औरतें अपने अपने घरों से शौहरों की इजाजत के बगैर निकल जाती हैं, वो जरा जहन में रखें। वो उसका शौहर चला गया और जैसे ही शौहर काम करने के लिए गया, वो लड़की घर में रह गई। रोजाना कुरान पढ़ा करती है, कुरान पढ़ा करती है और दुआएं करती है और कहती है, मौला मेरे शौहर की इज्जत और उम्र और कमाई में बरकत अता फरमा दे। उधर शौहर कमाता चला जा रहा, इधर ही घर में अकेली है और दुआएं कर रही है। बाप बेचारा दूसरे दिन तीसरे दिन तो रोजाना बेटी के हाल चाल पूछ के आता और कहता, मेरे लाल घबराना मत, कुछ दिनों के बाद बाप की तबीयत खराब हो गई। अल्लाह, जब बाप की तबीयत खराब हुई, अब तू चल मैं चल, सारे लोग देखने जा रहे हैं। अब ये लड़की कैसे घर से कदम निकाले, इसका तो शौहर ही नहीं है और फोन और मोबाइल का जमाना ही नहीं जो पूछ ले। अब लड़की घर ही घर में चक्कर लगा रही है, कह रही है, मौला मेरे बाप की तबीयत ठीक कर दे, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा की तबीयत ठीक कर दे।
उधर शार को पता नहीं मेरी बीवी किस परेशानी में, उधर बाप की तबीयत खराब है, मगर लड़की घर से बाहर नहीं जा रही है, अंदर ही अंदर घूम रही है, कुरान पढ़ लेती है, दुआ कर लेती है। सारे लोग देख देख के बाप को जा रहे, बाप ने देखा मेरी बेटी नहीं आई, बाप अपनी बेटी को याद करने लगा, छोटे भाई को भेज दिया, छोटे बेटे को भेज दिया कि जाओ बहन को बुला ला। छोटा भैया गया, आंखों में आंसू है, चलो अब्बा बुला रहे, तबीयत खराब है, नासाज है, कुछ बातें करना चाहते। इकलौती लड़की थी का कुछ बातें करना चाहते, अब्बा चलो, वो बहन चलो, अब्बा बुला रहा। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, भाई का हाथ पकड़ के हालचाल पूछने लगी, मेरे अब्बा की तबीयत कैसी है? कहा बहन चल के देख लेना। कहा भाई कैसे चलूं, कैसे जाऊं, मेरा शौहर तो है ही नहीं, मैं इजाजत किससे लूं, और शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना मेरे लिए जायज नहीं। इंतजार हो रहा था घर पे, माँ देख रही है और भाई देख रहे हैं, बहन आ रही होगी, बहन आ रही होगी। जब देखा तो वो छोटा भाई आ गया, बहन नहीं आई। पूछा क्या बात है, पूछा क्या बात है? कहा ये कह दिया कि बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। वो बाप ने ठंडी सांस ली और कहा वाह बेटी वाह, जब तू रुखसत हुई थी मैंने तेरा हाथ पकड़ के कहा था अगर तेरा बाप मरता भी हो तो शौहर की इजाजत के बगैर मत आना। बेटी आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया। मगर प्यार को कहां डाला, मोहब्बत को कहां डाला। थोड़ी देर बर्दाश्त करने लगा, बाप को सिसकियां हिचकियां आने लगी, मां से रहा नहीं गया। दूध पानी जो कुछ दिया जा रहा है वो नहीं ले रहा, ये कह रहा मेरी बेटी से दो बातें करा दो, मुझे बेटी से बुला दो। मां ने भेज दिया कि जाओ बेटी को बुला लो। फिर भैया रोता हुआ चला गया, बहन अब्बा के हालात खराब है, अब्बा जाने वाले हैं, पता नहीं कब दम तोड़ दे, पैर चलो। अब्बा दो बातें करना चाह रहे, सिर्फ दो बातें कर लेना। इस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, ठंडी ठंडी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, कहती है मौला मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया, अल्लाह मुझे सब्र देना, सब्र देना, मौला मेरे अब्बा को ठीक कर देना। लड़की दुआएं कर रही है और कह रही है भैया मेरा शौहर नहीं है, इजाजत के बगैर मैं नहीं जा सकती। अल्लाह, भैया फिर चला गया। अब बाप की नजर दरवाजे पे को थी, मेरी बेटी आ रही होगी। जब बेटी घर से जाती है, बाप से पूछो, चीख निकल जाती, चीखे कितने तो बेहोश होकर गिर जाते। माँ अगर हल्के दिल की होती उसको भी बेहोश होकर गिर जाती। सबको अपनी बेटियां पसंद है। अल्लाह अल्लाह भैया आ गया, इधर बाप बेटी को याद करते करते आखिरी लम्हों पर सांस है, उधर बेटी कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। कुछ टाइम गुजरा, बाप दुनिया से चला गया, बाप का इंतकाल हो गया, मगर बेटी नहीं गई। अल्लाह, बाप का इंतकाल हो गया। फिर वो भाई रोता हुआ, बहन अब्बा चले गए। लड़की ने चीख मारी करके अंदर कहा, ओ भैया वो बाप मुझे देख नहीं पाया, मुझे पता होता तो मैं कभी शादी के लिए हाँ नहीं भरती, मगर इम्तिहान तो भैया वो बाप अगर कुछ लाते थे तो सबसे पहले मुझे दिया करते थे, अगर पूछा करते थे तो मुझसे पूछा करते थे, मेरे साथ में बैठ के खाना खाया करते थे। आज वो मुझे याद
गुस्ल के बाद कफन दे दिया। अब क्या करे, लोग जनाजा लेकर के जब चले तो माँ ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और बुला करके कहा, सुनो, बाप का जनाजा कब्रिस्तान में बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर जाएगा, ताकि कम से कम बेटी देख ले। अब बाप का जनाजा बेटी के घर जा रहा, बाप का जनाजा बेटी के घर पहुंच गए। लोग निकल के वापस आ गए, दरवाजे पे खड़े हो गए। भाई रह गए, अल्लाह हाथ पकड़ के, आंखों में आंसू थे उसके, अब्बा जान अगर मुझे ये पता होता तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करती कि आपसे दो बातें करे बगैर आप दुनिया से चले गए, मगर अब्बा जान क्या करूं, आपने घुट्टी में पिलाए यही था। वो लड़की बार बार कह रही है, अब्बा जान मुझे माफ कर देना, आपने मुझे यही नसीहत की थी, यही पढ़ाया था। वो लड़की बाप के पांव को आकर के बोसा दे के कहती है, रो रो करके दुआ करती है, अल्लाह मेरा बाप गुनहगार सही, बदकार सही, लेकिन तू तो रहमान रहीम है, मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत कर दे। रो रो करके दुआ करती रही, दिल पे लोट ले लिया, पीछे तो गिर गई। भाइयों ने कपड़े संभाल के एक तरफ लिटा दिया और जनाजे को लेकर कब्रिस्तान चले गए, दफना करके आ गए। अब बेटी अपने घर है, बेचारी सुर्ख सफेद थी लेकिन अब सूख सूख के कांटा हो गई। अब्बा की याद आती है तो कुरान लेके बैठ जाती है, भाइयों को बुला लेती है, भैया मुझसे दो बातें करके चले जाओ। अपने अब्बा की वही बात पूछती थी, मेरे अब्बा मुझे क्या कह रहे थे, मेरे अब्बा मुझे क्या कह रहे थे, मेरे अब्बा मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। वही बातें बता करके बेटी सूख सूख करके कांटा हो गई। अब अगर तेजी में खड़ी हो जाए तो चक्कर आ जाए। शौहर को पता नहीं, कोई मोबाइल का जमाना थोड़ी था, उस गरीब को क्या पता, उसे कोई पता नहीं। अब उसके चलने का जब वक्त आया, उसने अपनी बीबी के लिए तोहफे ताइफ के लिए चीजें ले ली और लेने के बाद उसने सोचा बीबी तो ठीक होगी। जैसे ही घर आके उसने आवाज दी तो बीबी ने देखा ये तो मेरा शौहर है, तड़प जाती है, तेजी से दौड़ के पहुंच जाती है, गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई। कहा मेरे सरताज तुमने आने में बहुत देर कर दी, मेरी दुनिया लुट गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो गई हूँ। कहा कि क्या बात है, बात तो बता, क्या हाल हो गया तेरा। कहा मत पूछो, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, उसके हाथों से छूट गया। कहा ये बता किसने परेशान किया, कौन था। कहा मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, जो आप समझ रहे हो वो बात नहीं है। अरे जिस बाप ने मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में दिया था, आज वो बाप दुनिया से चला गया, मुझे याद करते करते चला गया, मगर मैं अपने बाप को दो बातें करने तक नहीं गई, मैं अपने बाप को मिलने तक नहीं गई, मेरा बाप मुझे याद करते करते चला गया। अल्लाह जब इतना कहा तो वो कहने लगा तुम्हें जाना चाहिए था। बीवी कहने लगी मेरे सरदार तुम तो घर में थे ही नहीं, तो फिर मैं इजाजत किससे लेती। और बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। दोनों मियां बीवी जब वहां पर पहुंचते कि चलो भी चल
اگر تربیت اچھی ہوگی. کیا ٹائم ہوا ہے؟ میرا موبائل تو بند ہے. 12:10 ہو گئے. بس اختتام پہ چل رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی؟